Okay, so you have a patient. Let us. I'm going to tell you a very important thing right now. ठीक है? Please listen this very carefully. ठीक है? It's a very important concept you must know. आपके पास एक पेशेंट आती है और उस पेशेंट को लंग में यहाँ पे एक पैथोलॉजी है. नाउ कैन यू टेल मी what happens to what in which lobe of this lung the pathology is. अगर आप सिंपल वे में सोचोगे तो लंग्स के लोअर पार्ट में है तो वी हैव थ्री लोब्स, नीचे में लोअर लोब है तो पैथोलॉजी मस्ट बी इन द लोअर लोब. बट आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग. ऐसा नहीं होता है. आई शो यू हाउ इट हैपन्स. द पैथोलॉजी इज हियर. ठीक है, जस्ट विद इन अ मिनट आई शो यू. सी, right side of the lung has three lobes, left side of the lung has two lobes. The three lobes are divided by two fissure. This is the upper lobe and this is the horizontal fissure. I hope you can see. Yeah, this is a horizontal fissure. Now this part is a middle lobe and this middle lobe is, and this is a lower lobe. This is divided by this oblique shape fissure. That is known as the oblique fissure. Left side we have two lobes, the upper lobe, lower lobe, both divided by oblique fissure. Now can you see that a part of the upper lobe is connected with the lowest part, that is the diaphragm, and a part of the middle lobe is connected with the lowest part, that is known as the diaphragm. This is the right side. So if a pathology is over here, is it in the lower lobe? Never. नाउ कन्फ्यूजन स्टार्ट्स. अगर ऐसा केस आता है तो हम इसको लोब्स तो नहीं बोल सकते हैं. दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट जोन्स इन द लंग. अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन. अभी जोन का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग जोन्स बोलेंगे, मतलब अपर जोन किसको बोलेंगे, लोअर जोन किसको बोलेंगे, मिडिल जोन किसको बोलेंगे. आई विल ड्रॉ एंड शो यू. ठीक है, डो नॉट वरी. दिस इज़ द फर्स्ट rib. ठीक है, we have the second rib. Till the second rib anteriorly, that is the upper zone. Now this was the second rib, this is the third rib. Fine, this is the fourth rib. Till the fourth rib, that is the middle zone. Second to fourth is the middle zone and the lower part is the lower zone. Fine, clear? Any pathology in this part, we'll call it a pathology in the lower zone, not in the lower lobe. Fine, chalo. Okay, so whenever I get a film, I've checked these four important parameters, everything was fine. Now how do I read a chest x-ray? सबसे पहले, is the chest x-ray adequate? Yes, let's scan the chest x-ray and do not forget the hidden areas. Whenever a patient comes to me, I start reading the chest x-ray like this. The most important part is starting now. Please have your absolute concentration in this part. ये शुरू हुआ, यहाँ पे जो आपको ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द ट्रेकिया. ठीक है, ब्लैक है बिकॉज इसमें एयर है. आई जूम इट फॉर यू. आई होप यू कैन सी राइट नाउ. ये हमारा ट्रेकिया है, इसके अंदर हवा है. सी द ट्रेकिया इज डिवाइडिंग. कैन यू सी? दिस पार्ट इज अ कराइना एंड दिस इज द right main bronchus, this is the left main bronchus. ठीक है, this is the right main bronchus and this is the trachea. Fine. First I look at the trachea, whether it is deviated or not. I'll say what I look into it. First let me just give you a brief idea. ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रेकिया से स्टार्ट किया. Once I saw the trachea, then laterally I look at the clavicles, then I look at the shoulder area. Fine. Once I'm done with this, I look at the lung parenchyma. Once I've looked at the lung parenchyma, then I look at these both hilums. Very important are the hilums. And after that I look at the border of the heart, जिसको हम लोग cardiac silhouette बोलते हैं. Cardiac silhouette. Silhouette is the border of the heart, the margins of the heart. ठीक है, I've looked at the hilum, I looked at the borders of the margins of the heart, then I look at the diaphragm, and at last I look at the CP angle. This is how I look or read into a chest x-ray. Fine. Now let us proceed. हर एक चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर एक्सरे में सारा कुछ ठीक लग रहा है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो पैथोलॉजी एक जगह में है. दोज आर द हिडन एरियाज ऑफ द लंग. हिडन एरियाज मतलब जो हमें एपरेंटली शुरू में नहीं दिखती है. वी हैव द फोर हिडन एरियाज. वन, दैट इज द एपेक्स. टू, दैट्स द हाइलम. थ्री, द रेट्रोकार्डियक पार्ट जो हार्ट के पीछे, ये हमें अपेरेंटली जल्दी दिखते नहीं है.
and the fourth is below the diaphragm. This is what it looks. These are the hidden areas of the lung. ठीक है, यहाँ पे माइन्यूटली खोजना है. ठीक है. ओके, सो दिस इज़ हाउ आई लुक इनटू अ चेस्ट एक्सरे. ठीक है, मैं किसमें क्या देखना है आई हैव नॉट येट डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग अ ब्रीफ आइडिया. ठीक है, हाउ डू आई रीड अ चेस्ट एक्सरे. नाउ आई हैव शोन यू अ एक्सरे विच इज़ फ्रॉम AP व्यू और PA व्यू. ठीक है, फ्रंटल चेस्ट एक्सरे. लेट अस डिकोड लैटरल चेस्ट एक्सरे. ठीक है, लैटरल चेस्ट एक्सरे में द इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट अगर आप डायरेक्टली ये व्यू देखोगे तो आई कैन बेट बहुत मुश्किल होगी. सो हम क्या करेंगे, हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक चेस्ट फील्ड में एक एक चीज़ ऐड करेंगे एंड सी हाउ इजी इट बिकम्स. ठीक है, विल स्टार्ट लाइक दिस. ठीक है, द फर्स्ट इज मैं इस चेस्ट कैविटी में बोन्स ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज अ लैटरल व्यू, दिस इज आवर स्टर्नम, दिस इज द मेनुब्रियम स्टर्नाई, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. ठीक है, आई हैव एडेड द रिब्स. ठीक है, सॉरी द वर्टिब्रा, दीज आर दी वर्टिब्रास. ठीक है, मैं यहाँ पे रिब्स को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट इट डज वी डोंट गेट कन्फ्यूज. यहाँ पे रिब्स भी है. ठीक है, कैन डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग दैट यहाँ पे रिब्स के यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द रिब एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रिब देर इज अ डिफरेंस इन द डेंसिटी. अपर पार्ट ज़्यादा वाइट है, लोअर पार्ट इज मोर ट्रांस रेडियोलूसेंट. This is known as spine sign. As we go down, the spine becomes blacker. ठीक है, ये अगर आपको लैटरल एक्सरे में वाइटिश कुछ शैडो मिल रहा है या दिस पार्ट लुक्स मोर डेंस दैन द एपेक्स, देयर इज 100% अ पैथोलॉजी. फर्स्ट चीज़ हमने सीख लिया. हमने अभी तक बोन्स ऐड किया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड मेजर ब्लड वेसल्स. सी दिस इज़ द हार्ट हमने ऐड किया और दिस हार्ट से स्टार्ट हुई आर्च ऑफ द एओर्टा एंड दिस इज द असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ द एओर्टा एंड वी हैव द डिसेंडिंग एओर्टा इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन. फाइन. Do you can you see I've also added one small vessel. This is the IVC. Heart हमारा, let me just draw over here. This is what the heart looks like. यहाँ पे जो ये वाला आर्च बन रही है, this is for the IVC. ठीक है, ओके. सो लेट अस इरेज दिस पार्ट. सो हमने ग्रेड वेसल्स ऐड कर लिया एंड द हार्ट. नाउ इस ग्रेड वेसल में और एक ग्रेड वेसल हमारे पास है हार्ट में ड्रेन करने के लिए. पहले हार्ट से निकलती है टू द लंग इज द पल्मोनरी आर्टरीज. हार्ट है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी बाइफरकेट करती है, मेन स्टेम पल्मोनरी आर्टरी, देन द लेफ्ट एंड द राइट. ठीक है, इट गोज टू द लंग, इट एंटर्स द लंग. क्रॉस सेक्शन में ये ऐसा दिखता है कुछ. ठीक है, the one which is higher is always the left pulmonary artery, the other is the right pulmonary artery. Remember, artery होगा तो क्या दिखेगा, white color का दिखेगा. ठीक है, these are the pulmonary arteries. ठीक है, after pulmonary artery what we have is the I'm adding the fissures. Just see, we have right side में एक फिशर होता है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल. दो फिशर होते हैं राइट में. वी हैव द ऑब्लिक फिशर, दिस अ ग्रीन लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल फिशर. ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास एक ही फिशर रहता है, दैट्स अ ब्लू लाइन. ठीक है, नाउ कैन यू, आप तो बोलोगे कि ग्रीन वाला राइट साइड का ऑब्लिक फिशर है ना, ब्लू वाला राइट साइड का ऑब्लिक फिशर है, और द वाइस वर्सा. आई शोड यू वन थिंग, द डोम ऑफ द डायफ्राम जो इनकम्प्लीट होती है ड्यू टू हार्ट का शेडो. देखो यहाँ पे डोम ऑफ द डायफ्राम इनकम्प्लीट, इज नॉट टचिंग द एंटीरियर चेस्ट वॉल. द पार्ट इज विच इज इनकम्प्लीट इज द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम. बात समझ गया, बिकॉज इसके आगे हार्ट रहता है तो इसीलिए इनकम्प्लीट रहता है. ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम. यहाँ से जो फिशर एक्सटेंड हो रही है ब्लू कलर की, दैट इज द लेफ्ट ऑब्लिक फिशर. ठीक है, okay, so we have added the vessels, we have added the bones, we have added the fissures. Now we are going to add the airway in it. Airway मतलब यहाँ पे ट्रेकिया नहीं था, हमने यहाँ पे ट्रेकिया ऐड किया. This trachea divides into right principal bronchus and left principal bronchus. ठीक है, right bronchus फिर से अपना upper divisional bronchus डिवाइड करता है, left upper divisional bronchus में डिवाइड करता है. ठीक है, this is the sternum. Fine, manubrium sterni, body of the sternum and manubrium sterni. These are the vertebral bodies.
These vertebral bodies, if you see, it looks more pale in while going down, and above it is more white. This is known as spine sign. Okay. Now I've added heart in it. See, I've added the heart, and we have the arching of the arch of the aorta. Fine. See, look at the dome of the diaphragm. The dome which is incomplete is always the left dome of the diaphragm. So this is the left dome of the diaphragm. I hope you can see. Now I've added the trachea, respiratory system. That is the trachea. These are the trachea, and posteriorly these black shadow is the shadow of the esophagus. ठीक है, trachea के पीछे esophagus है. Can you see two black dots? These are the branches. This is the trachea bifurcating into the left mainstem bronchus and right mainstem bronchus. These are basically the upper division of the mainstem bronchus, not exactly the main bronchus. ठीक है, mainstem bronchus ही बोलोगे तो it will be enough. Can you see this white density? These white densities are the density of the pulmonary artery, left and right pulmonary artery, which I have shown over here. ठीक है, these dots. Okay, so it's so easy, the lateral x-ray. Okay, so how do I read a lateral x-ray? Now, मैं आपको the frontal x-ray I showed you. Now I'll show you how to read a lateral x-ray. First, radiolucency increases, that is spine shine should be present. That is, यहाँ पे नीचे जितना जाओगे उतना dark होते जाएगा the vertebral body. यहाँ पे अगर कुछ object रहेगा, कुछ mass रहेगा, it will look whitish. Domes of the diaphragm, normally left dome of the diaphragm is incomplete, right dome of the diaphragm is complete. Are the hilas normal? See, these are the hilum. जहाँ पे ब्लड वेसल रहती है उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं. दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी. दिस हाइलम का पोजीशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेंसिटी दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो देर इज़ अ सस्पेक्टेड पैथोलॉजी इन इट. ठीक है, क्या पैथोलॉजी हो सकती है? देर मे बी लिम्फ नोड्स and other calcifications, metastasis, anything can be there. ठीक है. Abrupt change in density over the cardiac region. Okay, this is important. This is not a good X-ray. Okay, see, I'll try to explain you. जो हमारे हार्ट होती है, इस हार्ट, द हार्ट लुक्स वाइटिश. ठीक है, और दिस वाइटिश शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस. अगर ये यूनिफॉर्म मतलब पूरा ही ऊपर से नीचे तक सेम पैटर्न में वाइटिश रहना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैक स्पॉट्स इन बिटवीन. अगर उस कार्डियक शैडो में ब्लैक स्पॉट्स है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ पैथोलॉजी इन इट. ठीक है, इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस. ठीक है, दिस आर द हाइला एंड दिस आर द कार्डियक रीजन. एनी अबनॉर्मल लंग डेंसिटी. सी, लैटरल व्यू क्यों करना है? बिकॉज हार्ट के पीछे रेट्रोकार्डियक एरिया में कुछ भी रहेगा तो हम क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में हार्ट के पीछे नहीं दिखता है. ठीक है, दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू लुक ओवर हियर, आप इजीली इसको बता सकते हो दैट दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पोजीशन ऑफ द बॉडी, द पोस्टीरियरली. तो फ्लूइड सबसे पहले जमा होगा तो फ्लूइड यहीं पे जमा होगा. मिनिमम 50 ml of fluid is required in this part to get this CP angle, to get this is not the CP angle, the costophrenic angle, to get obliterated. ठीक है, अगर आपका एंटेरो पोस्टीरियर व्यू है तो इट इज़ अराउंड 175 ml. आई मीन आई शो यू द एक्सरे. अगर इस एक्सरे में CP एंगल आपको ब्लंटेड मिलता है, मेनली ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन. यहाँ पे फ्लूइड हो गया तो ये वाला फ्लूइड जहाँ पे जमेगा, फ्लूइड लुक्स वाइट, तो ये वाला पार्ट वाइट दिखेगा और ये ऐसे करके आपको ब्लैक दिखेगा. तो दिस इज़ ब्लंटिंग ऑफ CP एंगल. ये मेनली ड्यू टू इफ्यूशन होगा. तो ब्लंटिंग होने के लिए एंटेरो पोस्टीरियर में 175 ml इज़ इम्पॉर्टेंट. लैटरल व्यू में जस्ट 50 ml. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ दिस वॉज अ स्यूपाइन पेशेंट, ठीक है, अगर ICU में पेशेंट है, सोया हुआ है, उसको हेमी डायफ्राम को ऑब्लिटरेट करने के लिए अराउंड 500 ml ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड. सो आई होप आई कुड मेक माई पॉइंट क्लियर. Over the heart, posterior CP races, I've already spoken about this part. So this is how I look into a lateral chest X-ray. Okay. So coming in details, ये तो जस्ट आई गिव यू एन ओवरव्यू. सबसे पहले हमने चेक किया वेदर
द एक्सरे इज़ एडिक्वेट और नॉट। अगर एडिक्वेट है, हमने बताया कि आप कैसे करके एक एक्सरे को इंटरप्रेट करोगे, क्या क्या चीज़ देखोगे। सबसे पहले आपने ट्रेकिया देख लिया, ट्रेकिया के बाद आपने क्लैविकल देखा, क्लैविकल के बाद आपने स्कैपुलर रीजन देखा, स्कैपुलर बाई मीन आई मीन द शोल्डर। फिर आपने लंग फील्ड्स को चेक किया। आफ्टर यू हैव चेक द लंग फील्ड, यू केम एंड चेक द हाइलम, यू चेक द कार्डियक एरिया, यू चेक द डायफ्राम एंड द सीपी एंगल्स। नाउ मैंने डिटेल्स में कुछ बात नहीं किया इसमें क्या क्या देखना है। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल्स दैट व्हाट शुड यू सी इन दिस चेस्ट एक्सरे। ठीक है, नाउ स्टार्ट्स द मेन पार्ट। सबसे पहला हम इस लंग पैरेनकाइमा को चेक करेंगे। पैरेनकाइमा में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग। देन हम हाइलम को, आई विल टॉक अबाउट हाइलम, देन आई विल टॉक अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर कोई लोब कोलैप्स कर जाता है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, इन दैट केस हाउ डू यू सी, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई लोब कोलैप्स कर गया। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द मीडियास्टाइनम एंड इसकी बाउंड्रीज, इसमें हार्ट की क्या क्या मार्किंग्स रहती है, कौन सा हार्ट का पार्ट मीडियास्टाइनम में दिखता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड एट लास्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्लूरा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। Basically, the main pathology lies, we're talking about the lung fields. ठीक है, इस lung field में अगर मुझे कुछ whitish चीज़ दिख रहा है, this means this is not normal, यहाँ पे it has no business to stay। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ white part दिख रहा है lung field में, whether the pathology is in the alveoli or in the parenchyma, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सबसे पहले अगर पैथोलॉजी एल्वियोलाई में रहेगा तो द मार्जिन ऑफ द पैथोलॉजी विल बी फ्लफी, इट विल कोएलेस, सब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। ये लोबार डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये लोब में सीमित रहेगा। यू विल गेट एयर ब्रोंकोग्राम एंड बटरफ्लाई शैडोज बिकॉज इट इज कोलैसिंग टुगेदर। वेर एज अगर इंटरस्टिशियल होगा तो इट विल सी, दिस इज द एल्वियोलाई। ठीक है, इसके बाहर को हम इंटरस्टिशियम बोल रहे हैं। इंटरस्टिशियम इज जस्ट द ग्राउंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो द पैथोलॉजी विल बी इन द आउटसाइड द एल्वियोलाई। ठीक है, अगर इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी होगा, पैटर्न्स ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो विल गेट इधर शैडोज। ठीक है, अगर वो शैडो लाइन की तरह दिखेगा तो विल सी कॉल इट लीनियर। अगर वो ब्रांचिंग की तरह दिखेगा तो विल कॉल इट रेटिकुलर। अगर कैविटी के तरह, मतलब नॉट कैविटी, जस्ट लाइक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखेगा, दैट इज नोन एज हनी कोम्बिंग। ठीक है, और अगर ये रेटिकुलर और अच्छा वन मोर थिंग इज डॉट डॉट दिखेगा, ठीक है, तो विल कॉल इट नोड्यूलर। तो रेटिकुलर दैट इज ब्रांचिंग पैटर्न, डॉट डॉट दैट इज नोड्यूलर। तो ब्रांचिंग और डॉट डॉट एक साथ मिलेगा, वी कॉल इट रेटिकुलर नोड्यूलर। सो बेसिकली दीज आर द पैटर्न्स जो हमें लंग में मिलेगा। I'll show you, give me a minute. Can you see that there are fine lines? So we call it, these are linear interstitial lung disease. ठीक है, you need to observe it very carefully. Versus over here, can you see that something has happened over here and this area looks more white? ये एरिया ज़्यादा वाइट दिख रहा है, ये एरिया ज़्यादा वाइट दिख रहा है। So basically the whatever has happened, it has coalesced with each other. The margins are fluffy, not that sharp. It has coalesced and it is a part or segment is getting involved, versus यहाँ पे interstitial में majority time the lungs as a whole gets involved. ठीक है, okay, so these are the patterns of interstitial lung disease. किस किस diseases में हमें मिल सकता है, I'm not reading out the names, please have a look. जब भी आपके पास कोई भी इसमें से एक पैटर्न मिलेगा, वेदर दैट इज लीनियर, रेटिकुलर, नोड्यूलर और रेटिकुलो नोड्यूलर, दिस इज रेटिकुलो नोड्यूलर वन, यू मस्ट थिंक दैट वेदर द पेशेंट इज हैविंग दीज डिजीजेज और नॉट। ठीक है, ओके, सो this is another example. This is a same patient x-ray versus this is the same patient where we have the CT plates, CT cut section. Can you see this linear lines? You can see. I've said that white part looks blood vessel. There can be fibrosis also may look white. ठीक है, so do not always think whatever is white is blood vessel. So यहाँ पे linear part जो है, ये जो linear shadows हैं,
दीज आर द थिकनिंग ऑफ द पैरेन्काइमा, ठीक है। उसीलिए दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ठीक है, ILD में है। दिस इज सब वेरिएंट ऑफ ILD, ठीक है। Okay, so coming to the honeycombing, I was talking about interstitial lung disease. You have honeycombing. So see, just how, just like this is much better. ये काफ़ी better है। देखो, black round air containing spaces and there is a thick wall, ठीक है। Versus in case of emphysema, you won't get a wall, ठीक है। एम्फाइसिमा में ब्लैक इसी तरह दिखेगा, बट उसमें जो बाउंड्रीज है जो वो क्लियरली नहीं दिखेगा। वर्सेस इन हनी कोमिंग यू विल सी दैट यू हैव अ एडिक्वेट बाउंड्री, ठीक है। वाइटिश जो बाउंड्री दिख रहा है वो हमें एम्फाइसिमा में नहीं दिखेगा, हनी कोमिंग में दिखेगा, ठीक है। एंड इट विल बी स्टैक्ड इन लेयर्स, ठीक है। मिनिमम 3 लेयर्स दिखेगा, तो दैट वी कॉल इट एडिक्वेट, ठीक है। चलो, हनी कोमिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, डू यू सी ओवर हियर, यहाँ पे देखो, दिस इज द हाइलर रीजन और ये ज़्यादा वाइड दिख रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल्स इन इंडिया इज सार्कोइडोसिस, ठीक है। Sarcoidosis can coexist with tuberculosis. I'll show you over here. Just see, there's in hilum, there's increase, there's a shadow in the hilum, as well as there's infiltration. There are cavities, ठीक है। ये छोटा छोटा cavity है। This is a cavity, ठीक है। ये cavity है। So these are the cavities. This means that the lungs has been infected with tuberculosis. Along with that, the patient is having sarcoidosis. Cavitating pulmonary lesion, I already spoke about it. These are the causes जहाँ पे आपको एक cavitating pulmonary lesion मिल सकता है. This means जब भी आपको, okay, I'll show you the cavity, how it looks like. Do you see this part? And do you see a straight line here? This is what air and this is fluid. This is a cavity. इस cavity के अंदर हवा भी है और पानी भी है. This is the air fluid sign, ठीक है. So this is a cavity. We have another cavity over here. I hope you can see. This is the air fluid sign. ये cavity है, ठीक है. यहाँ पे भी एक cavity है. So cavity is nothing but the wherever there you have a thick wall, ठीक है, then we call it a cavity, ठीक है. अच्छा, just now I said honeycombing, there is also a thick wall, cavity also a thick wall, but the sizes are very, honeycombing you have very means the thickness is very less, but that is prominent on HRCT, versus a cavity when you have a thick wall that is prominent on chest X-ray. Now जो कैविटी बनती है उसकी जो ड्यूरेशन, मतलब जो वॉल थिकनेस होती है, इट शुड बी अराउंड, इन अक्यूट केसेस इट इज़ अराउंड जनरली 4 mm, ठीक है। और अगर 2 to 4 mm है, 2 mm के करीब है, तो वी कॉल इट, द जो कैविटी रहेगी वो क्रॉनिक कैविटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज अ गॉन्स फोकस, अगेन अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सी, consolidation, we have the lymph nodes, ठीक है. This is a consolidation along with Gons focus. Okay, so this is again a transbronchial tuberculosis. Just see so many cavities within the lung field, ठीक है. Okay, one more very important, आपके पास एक फंगल डिजीज आती है, that is aspergilloma. You must be able to identify. Just see, can you see a ball over here? Ball kind of circular thing, जहाँ पे crescent shadow, blackish shadow मिल रहा है. This is the ball, ठीक है. इसके ऊपर एक blackish area, air containing space मिल रहा है. This is what the black area I was talking about. This is the same patient, and यहाँ पे देखो, there's a ball type of structure. This is very classic of fungal ball aspergilloma, ठीक है. Okay, see, in tuberculosis, specifically extrapulmonary tuberculosis, we have something called as miliary TB, ठीक है. I'll show, do I have a picture? Yeah, see, मिलियरी टीबी में क्या होती है, मिलेट सीड्स के शेप का या साइज का देयर आर वाइट डॉट्स, ठीक है. ये दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ वाइट डॉट, आई कैन सी देयर आर मल्टीपल वाइट डॉट्स हियर 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 हियर, सारा वाइट डॉट्स है. इसी पेशेंट का हमने CT स्कैन किया था. देखो, जस्ट सी, देयर आर सो मैनी वाइट डॉट्स. नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा में इतने सारे वाइट डॉट्स नहीं रहते हैं, ठीक है. तो अगर मुझे इतने सारे वाइट डॉट्स मिल रहा है, मोस्ट कॉमनली इंडिया में हम लोग उसको मिलियरी टीबी बोलते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट
खाली मिलियरी नोड्यूल्स अगर आपको लंग फील्ड में दिस लुक्स लाइक ए नोड्यूल, सो अगर आपको ये छोटा छोटा मिलेट सीड्स के शेप का नोड्यूल्स मिल रहा है, इट इज़ नॉट ओनली ट्यूबरक्यूलोसिस, इट हैज़ अदर कॉजेज लाइक इट मे बी सीन इन सार्कोइडोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मेटास्टेसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। इतने सारे कॉजेज में आपको मिलियरी शैडोइंग मिल सकता है। इफ़ द मिलियरी शैडोइंग इज डेंस, ठीक है, एल्वियोलर माइक्रोलिथ्स, ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट्स इन द एल्वियोलाई, तो मे कैल्सिफिकेशन, ठीक है। किस किस केस में? टीबी के केस में, चिकन पॉक्स के केस में, डस्ट इनहेलेशन मेनली टिन, अगर कोई पेशेंट टिन को एक्सपोज करते, टिन फैक्ट्री में काम करती है तो उसका जो डस्ट इनहेल करेगा उसको भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है, विच लुक्स वेरी सिमिलर टू मिलियरी शैडोइंग या फिर बेरियम एक्सपोजर। सो दीज आर दी कंडीशंस जहाँ पे आपको मिलियरी शैडोइंग मिल सकता है, ठीक है, आपके पास पेशेंट लेके आ सकता है। ओके, सो इन इंडिया अगर हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आता है, नॉट इन इंडिया, इन जनरल अगर हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आता है वेयर देयर इज़ मिलियरी डॉट्स, सी द मिलियरी शैडोइंग एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट, मेनली ड्यू टू ये डॉट्स जो है मिलियरी टीबी का नहीं है, ये मेटास्टेसिस का है, लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमा, ठीक है, दैट इज द रीजन वी हैव वेब डन मैस्टेक्टोमी। ओके, इन इंडिया दिस dot like structure in a patient who is immunocompromised, it is being reported as calcified varicella scars, ठीक है। ओके, सो हमने पैरेनकाइमा के कुछ पैथोलॉजीज के बारे में जाना कि वेदर दैट इज इंटरस्टिशियल, वेदर दैट इज अल्वियोलर डिजीज, ठीक है। नाउ हमने देखा कि हाउ डज ए मील कैविटी लुक लाइक, देन वी स्पोक अबाउट द मिलियरी शैडोइंग, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ द मिलियरी शैडोइंग। अभी हम जानेंगे कि अगर हमारे प्लूरल कैविटी में हवा आती है दैट इज़ न्यूमोथोरैक्स, या फिर अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है दैट इज़ प्लूरल इफ्यूशन, और अगर हवा और पानी दोनों रहता है हाउ डज इट लुक लाइक, हाइड्रोन्यूमो, वी कॉल दिस हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। सी, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट न्यूमोथोरैक्स। फॉर न्यूमोथोरैक्स देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू सी। देखो, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ओवर हियर। सबसे पहला न्यूमोथोरैक्स में देर इज एयर इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है, नॉट इन साइड द लंग्स, लंग्स में तो हवा रहता ही है, बट न्यूमोथोरैक्स में आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लूरल कैविटी। द लंग्स हैज श्रंकन, लंग्स छोटा हो गया है, अगर लंग्स छोटा हो जाएगा तो लंग्स विल लुक डेंस। सेकेंड, वी विल सी अ मार्जिन, हमें एक मार्जिन दिखेगा लंग का, ठीक है, दैट इज कॉनकेव मार्जिन, सॉरी कॉन्वेक्स मार्जिन दिखेगा, ठीक है, हरदम न्यूमोथोरैक्स में मार्जिन ऑफ द कोलैप्स लंग शुड बी सीन। Second, the air containing lung should look more blacker compared to the opposite side lung, ठीक है, जहाँ पे न्यूमोथोरैक्स हुआ है वो पार्ट ऑफ द लंग बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक दिखना चाहिए। द थर्ड पार्ट इस, जहाँ पे न्यूमोथोरैक्स है वहाँ पे मुझे लंग्स तो एक्सपैंडेड नहीं है, लंग्स कोलैप्स्ड है, तो अगर एक्सपैंडेड लंग होता तो मुझे उस लंग्स के अंदर ब्लड वेसल दिखता, ब्लड वेसल लुक्स वाइट, तो मुझे उस लंग्स में वाइट मार्किंग्स दिखना चाहिए था। कौन से लंग्स में? जो लंग्स नॉर्मल है उस केस में, एक्सपेंडेड लंग में। जैसे ही न्यूमोथोरैक्स होती है व्हाट हैपेंस इज दीज, यहाँ पे तो लंग्स की कोई टिश्यू नहीं है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, ब्रोंकाई नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स नहीं दिखेगा। लेट अस सी इनटू दिस चेस्ट एक्सरे। सबसे पहले दिस पार्ट लुक्स मोर ब्लैक देन दिस लंग फील्ड, अग्रीड, फर्स्ट थिंग। मुझे मार्जिन दिख रहा है, दैट इज द सेकेंड थिंग, एंड द थर्ड थिंग, आई डो नॉट सी एनी ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग ओवर हियर, यहाँ पे पूरा खाली है, वर्सेस यहाँ पे ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग दिख रहा है। सो वन मोर थिंग, ऐसे कभी पेशेंट आती है तो ऑलवेज से दैट देयर इज अ वॉल्यूम लॉस, जो लंग हो गया वो श्रिंक कर गया, वॉल्यूम लॉस हुआ है। वर्सेस नाउ लेट अस सी हाउ अ प्लूरल इफ्यूजन लुक्स लाइक। Fluid, that can be blood, that can be bile, that can be whatever it is, ठीक है, कोई भी fluid, that can be like anything, any serous fluid, anything, any fluid always looks white in chest x-ray, ठीक है। Now assume that now this is actually a fluid. I do not, without proper investigation, without visualizing the fluid, nobody is able to say that whether there is blood inside, अंदर में खून है, ना तुम्हारा बाइल है, ना तुम्हारा what you say that is like chyle, so the वो है या फिर serous fluid है, nobody is able to say, ठीक है। इन केस ऑफ इफ्यूशन सबसे पहले पानी हमारा ये जो सी पी एंगल्स है, दिस इज अ डिपेंडेंट पार्ट, लोएस्ट पार्ट, इसी में जमा होती है, ठीक है, इन अ स्टैंडिंग पेशेंट्स, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन करती है। सबसे पहले देर विल ऑब्लिटरेशन ऑफ द सी पी एंगल।
After that, the fluid starts accumulating and it pushes this part, the lung up. ठीक है, this forms a curve, S shaped curve, that is the Ellis curve. ठीक है, fine. इन केस ऑफ इफ्यूजन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को देखिए, बिकॉज ऐसा पेशेंट आपके पास आएंगे. इफ्यूजन की जो वाइट डेंसिटी होगी, ये पूरा होमोजेनसली वाइट होगा. बीच में अगर एयर कंटेनिंग कुछ भी ब्लैक स्पॉट्स आपको मिल रहा है, प्लीज़ बी अलर्ट. दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट कट केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, सॉरी प्लूरल इफ्यूजन. ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन में हरदम आपको वाइट मिलेगा और ये होमोजेनस रहेगा. बीच में कुछ ओपेसिटी या कैविटीज, ब्लैक कलर की कुछ शेडोज नहीं मिलनी चाहिए, और देयर शुड बी फाइन स्मूथ लाइन ऑफ एलिस कर्व मिलेगा. ठीक है, सो आई गेट एलिस कर्व, आई गेट द सीपी एंगल ब्लंटिंग, एंड दोनों के बीच में कोई भी वाइट ब्लैकिश डेंसिटी या फिर ब्लैक पैचेस नहीं है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली वाइट एंड होमोजेनस. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लूरल इफ्यूजन. नाउ अगर लंग्स में हवा और पानी विद इन द प्लूरल कैविटी, अगर हवा और पानी दोनों रहेगा, वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन. जस्ट सी, we get a straight line. Whenever you get a straight line, always think that this is a case of hydro, that is fluid, and pneumo, that is here hydropneumothorax. Now can you tell me where is the lung margin? If you look into this x-ray, I'll show you. See, can you see this part? इसके बाहर यहाँ पे कोई भी हमारा ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स नहीं है, बट जो भी ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स यहाँ पे है, एंड दिस पार्ट इज बेसिकली द न्यूमो, दिस इसके नीचे इज द हाइड्रो. आई होप यू कैन सी दिस पार्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू लुक इनटू अ हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट इज हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स लोक्यूलेटेड वर्सेस लंग एब्सेस. इसको मैं बाद में इन डिटेल्स में बात करूँगा. वी कैन स्किप दिस पार्ट बिकॉज आगे है. सो हमने सबसे पहला पार्ट जब हमने स्टार्ट किया था ट्रेकिया से, हमने क्लैविकल को देख लिया. वी लुक्ड इनटू द होल ऑफ द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा में हमने क्या क्या देखा? पैरेन्काइमा में सबसे पहले पैरेन्काइमा पैथोलॉजीज हमने चेक किया. वी चेक दैट वेदर देयर इज एन कैविटी, और सबसे पहले तो हमने एल्वियोलर डिजीज़ है ना, इंटरस्टिशियल डिजीज़ है, वो पता चल गया वाइटिश नेचर को देख के. अगर एक साथ कोएलेस करेगा वी कॉल इट एल्वियोलर, अगर वहाँ पे लाइंस मिलेगा वी कॉल इट इंटरस्टिशियल. ठीक है, अगर डॉट्स भी मिल सकता है तो वो बेसिकली इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व कर रहा है. सेकेंड थिंग, वी लुक्ड इनटू द कैविटीज़. अगर हमने कैविटी को चेक किया, वहाँ पे कैविटी क्या है नहीं है. द थर्ड थिंग जो हमने चेक किया, इन केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस हमने वो लिम्फ नोड्स को भी चेक कर लिया है. आज के इस क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ टॉपिक है, मतलब कुछ पार्ट है, तो वो ये पार्ट है, दैट इज़ द हाइलम. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू. ठीक है, आई ऑलरेडी सेड यू दैट दीज आर द ब्लड वेसल्स. ये जो वाइट मार्किंग है हाइलम में, दीज आर द ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं. ठीक है, राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लोअर डिविजन, अपर डिविजन. ठीक है, नाउ इस पल्मोनरी आर्टरी को देख के हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. आई टेल यू. सबसे पहले दीज सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब हाइलम में क्या क्या चीज़ है. सी, आई शो यू, आई टेक द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. कैन यू सी दैट दीज आर द descending these are the descending pulmonary artery, this is ascending part, this is lower inferior pulmonary artery, right pulmonary artery की inferior division है, this is the superior division. ठीक है, can you see it forms a V shape. ठीक है, हमें इस V को चेक करना पड़ता है. we generally check this V. ठीक है, यहाँ पे देखो, I'll show you. okay, this part, do you see this V? the left side ऑफ दिस वी, ये जो पॉइंट है, अगर अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, विच दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ऑलवेज हायर. सेल्डम द बोथ कम इन इक्वल प्लेन. लेफ्ट हरदम ऊपर रहेगा, बहुत रेयर सिचुएशंस में ये दोनों वी बराबर लेंथ पे आएगा, और एक्सट्रीमली राइट ऊपर जाएगा. नाउ इसका इम्पोर्टेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू हाउ. जस्ट सी, अगर कुछ अपर लोब में मेरा पैथोलॉजी है,
what will it do? It will pull the hilum towards itself. अगर राइट हाइलम मेरा ऊपर है देन द लेफ्ट हाइलम, ठीक है, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट समथिंग इज पुलिंग इट और समथिंग इज पुशिंग इट. Fine. So it's so very important. I'll speak about this in details. The second thing, मुझे इसका तो पोजीशन चेक करना है. मैं फर्स्ट पोजीशन चेक कर लिया. मैं इस हाइलम का शेप को चेक करूँगा whether this concavity is present or not. अगर यहाँ पे कुछ lymph node whitish tissue है तो this concavity will be lost. It will look like bubbly and like convex, will look like white convex structures and it will look more dense. That's very important. तो ये हाइलर पैथोलॉजिस्ट को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी. चलो, वी आर डन विद दिस पार्ट. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू सी दी ब्लड वेसल. ये जो ब्लड वेसल है ये भी हमें बहुत कुछ बताती है. सबसे पहले देखो, अगर दिस इज़ द डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा एक लोब कोलैप्स हो जाता है, डू यू थिंक दैट दिस आर्टरी इज गोइंग टू सप्लाई? वो तो उसका सप्लाई भी बंद हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड भी फ्लो नहीं करेगा. तो सडनली अब्रप्टली अगर यहाँ पे मेरा पल्मोनरी आर्टरी का कोई मार्किंग नहीं रहता है, लोअर डिवीजन में ये पल्मोनरी आर्टरी गायब हो जाता है, दिस सिग्निफाइज दैट, okay, I don't want to ask Siri. Yeah, this signifies that there is a lower lobe collapse. I'll talk about lobe collapse in details, ठीक है. So just now we are talking about the hilum. हमने hilum का position देखा, हमने hilum का shape देखा, हमें ये पता चला कि right side हरदम नीचे रहेगा, लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है. यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस, दैट लेफ्ट साइड हार्ट के लिए ऊपर है, ठीक है, राइट साइड लोअर है. सेल्डम इट कम्स इनटू, मतलब मिडिल में दोनों इक्वी डिस्टेंट रहेगा, और अगर राइट ऊपर है समथिंग इज पुलिंग इट, ठीक है. ओके, सो द सेकेंड थिंग जो हमने हाइलम के बारे में देखा कि हाइलर जो ब्लड वेसल्स है, अगर एक लोब में कोलैप्स हो जाता है राइट साइड का लोअर लोब, द ब्लड सप्लाई विल स्टॉप. ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा तो वो वाइटिश जो डेंसिटी वो मुझे नहीं दिखेगी, ठीक है. इंफीरियर डिवीजन ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी विल नॉट बी विजिबल. ओके, सो अगर यहाँ पे थिकनिंग मुझे दिखता है, that can be one of the possibilities that the branching, that the inferior division of the right pulmonary artery is wide. It may suggest that the patient is having pulmonary artery hypertension. Very important, ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी वाइड हो गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइलम. विल यूज दिस, ठीक है. ओके, जो मैं जिसके बारे में बता रहा था, सी लोबर कोलैप्स और फिशर. जब भी let us assume we have the two lobes of the lung. This is the right side, this is the left side, ठीक है. राइट साइड में एक लोब अगर कोलैप्स हो जाता है, अगर अपर लोब कोलैप्स हो जाता है, तो व्हाट हैपेंस, लंग्स एक्सपैंड्स, ठीक है, और फिशर भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है. अगर लोअर लोब कोलैप्स होगा तो वी हैव द ऑब्लिक फिशर, इट विल गोइंग टू मूव, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट द ब्लड सप्लाइंग द लोअर लोब विल गेट ऑब्लिटरेटेड, वो कैंसिल हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, तो वाइटिश जो मुझे पार्ट दिखता है वो मुझे नहीं दिखेगा. ओके, लेट अस गो डायरेक्टली टू द कोलैप्स ऑफ ए लोब इन जनरल. अच्छा, वन मोर थिंग, वेन एवर लंग्स कोलैप्सेस वी विल शो एविडेंस ऑफ वॉल्यूम लॉस. जब भी लंग्स कोलैप्स करेगा, एक पार्ट ऑफ द लंग कोलैप्स कर गया तो देर विल बी, मतलब वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, तो विल सी द वॉल्यूम लॉस. कैसे पता चलेगा? जो रिब्स होगा दे विल कम क्लोजर, ठीक है. और सेकंड, एक तो पार्ट लंग्स कोलैप्स हो गया, दूसरा जो लंग का जो बाकी रेसिडुअल लंग है ये हाइपर इन्फ्लेट करेगा, ये ट्राई करेगा उस जगह को पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए, पूरा तो नहीं कर पाएगा, टोटल वॉल्यूम तो कम ही है. सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है सप्लाई कर रही है, दे विल गेट स्प्रेड आउट, ठीक है. वर्सेस एक नॉर्मल लंग में अगर नॉर्मली इतना गैप रहेगा ब्लड वेसल के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा गैप रहेगा. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ये कितने गैप में है, और यहाँ पे ब्लड वेसल कितनी डेंसली पैक्ड है, ठीक है. थर्ड थिंग, एक तो मैंने रिब्स बताया कि रिब्स के बीच में डिस्टेंस, तुम्हारा लंग्स तो श्रिंक कर गया, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लॉस हुआ, बट और जो रेसिडुअल है वो एक्सपैंड कर गया, बचा हुआ लंग था. टोटल वॉल्यूम लॉस हुआ, श्रंक किया, तो बेसिकली दोनों रिब्स क्लोज में आ गए, दोनों रिब्स नैरो हो गया, छोटा हो गया. थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जैसे ही ये वाला पार्ट ऑफ द लंग एक्सपैंड करेगा, नॉर्मल से, नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए था, ये एक्सपैंड करके ये वाला हाइपर इन्फ्लेट कर गया,
जैसे ये हाइपर इन्फ्लेट किया, व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स रिलेटिवली मोर डार्कर, ज़्यादा यहाँ पे डार्क होगा, ब्लड वेसल भी कम हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर टू दिस साइड, ठीक है। दीज आर दी बेसिक्स ऑफ एनी केस ऑफ एनी कोलैप्स ऑफ द लोब। नाउ अब हम स्पेसिफिक लोब्स के बारे में देखेंगे। जस्ट सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ पे दिस पार्ट इज गॉट कोलैप्स, ठीक है। ये तो ब्लैकिश और दिखेगा नहीं, ये मुझे वाइट दिखेगा बिकॉज यहाँ पे और हवा है नहीं। सेकंड, इसके यहाँ पे जो ब्रांच कर रही थी, जो सप्लाई कर रही थी डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी, वो गायब हो जाएगा। और यहाँ पे जो फिशर है, दिस इज वी हैव द ऑब्लिक फिशर, इस तरह से आती है, वो और पीछे की तरफ और मीडियली चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिशर इज सीन इन प्रोफाइल एंड इट्स फ्रॉम द लैटरल एज ऑफ द ट्राइंगल। तो ये तुम्हारा फिशर का एक लैटरल मार्जिन हो रहा है। सेकेंड, राइट हाइलम इज डिप्रेस्ड। क्यों राइट हाइलम नीचे आ रहा है? नाउ क्वेश्चन इज दिस वेरी इजी। लंग्स क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है। लंग्स जैसी एक्सपैंड करेगी तो राइट हाइलम तो नीचे आएगा ही। लंग्स के साथ राइट हाइलम इज डिप्रेस्ड, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे राइट हाइलम नीचे आ गई। द लोअर पल्मोनरी आर्टरी इज नॉट विजुअलाइज। यहाँ पे देखो लोअर पल्मोनरी आर्टरी मुझे नहीं दिख रहा है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम इज ऑब्सक्योर्ड। ओके, सो ये कंसेप्ट मैं जब कार्डियक सिल आउट या डायफ्राम की सिल आउट के बारे में बोलूँगा, आई स्पीक अबाउट एट दैट टाइम, ठीक है। दिस इज ऑब्सक्योर्ड मतलब नहीं दिख रहा है। सी, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्राम मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दी, ये जो दिस पार्ट सिल आउट कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ही आफ्टर हाइलम वी आर गोइंग टू स्टडी द मीडिया स्टेनम एंड द कार्डियक सिल आउट, उसमें मैं इस पार्ट को और क्लियर से बताऊंगा। lateral margin of the adjacent vertebra is effaced, ठीक है। it's the same concept, ठीक है, we'll discuss over there. Now we have seen what happens when there is collapse of one of the lobe, that is the lower lobe. Now middle lobe collapse. Okay, here also there is a concept of cardiac sellout. Let us talk about cardiac sellout first, ठीक है। Okay, so what is sellout? अगर बहुत आसान भाषा में हम कहें तो द बॉर्डर और द मार्जिन इज नोन एज द सिलआउट। सो हार्ट की जो मार्जिन है वो सिलआउट है, ठीक है। वेन एवर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर डेंसिटी, प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली, वेन एवर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर डेंसिटी लाइज इन adjacent or touching each other, the boundary between these two objects gets vanished। मतलब मुझे बाउंड्री नहीं दिखेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है, वो दो एक दूसरे को टच करके है और दोनों का ही डेंसिटी सेम है, तो दोनों के बीच में कोई डिमार्केशन नहीं रहेगा, बाउंड्री नहीं दिखेगा। फर्स्ट थिंग, तो हार्ट है हमारे पास, जस्ट अज्यूम इट लाइक दिस इज द हार्ट, ठीक है। एंटीरियरली ये है, पोस्टीरियरली ये है, बीच में हमारा हार्ट है, ठीक है। वी हैव अ मास दिस साइड, ठीक है, दिस अ मास। नाउ दिस मास इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द हार्ट, ठीक है। तो विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस बॉर्डर, हार्ट का बॉर्डर? नहीं, बिकॉज इट इज़ इन सेम डेंसिटी ऑफ द हार्ट एंड इट इज़ टचिंग द हार्ट, तो हम हार्ट के बॉर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। Versus, if the mass was somewhere at the back, not touching the heart, then these borders, when you look, even if you are looking it from the antero-posteriorly, you will find that the mass has its own border and the heart has its own border. So even if the angle is like this, you can clearly demarcate the borders or edges of the heart, because the mass is not lying in close proximity or not touching the heart. That is the reason it is lying posteriorly to the heart. We can see the cardiac margin, ठीक है। यही कंसेप्ट अप्लाई करना है हमें यहाँ पे। जस्ट सी, नाउ आई हैव स्पोकन अबाउट द सेल आउट या मिडिल लोब, ठीक है। जब भी मिडिल लोब कोलैप्स करता है, बीच में कोई चीज़ अगर कोलैप्स करती है तो हाइलम कहीं पे मूव करेगा? देर इज़ नो पुल, ऊपर से कोई पुल नहीं है, नीचे से कोई पुल नहीं है, तो हाइलम स्टेज इन नॉर्मल पोजिशन। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ दैट जब भी कोलैप्स करेगा, द डेंस स्ट्रक्चर जो बनेगी वो हमारी हार्ट की, अगर राइट साइड में कोलैप्स करता है तो राइट साइड की जो बाउंड्री है उसको सिल आउट कर देगी, मतलब वो क्लियरली मुझे डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगा। जस्ट सी ओवर हियर, कैन यू सी दैट ये मेरा हार्ट का बॉर्डर क्लियरली विजिबल नहीं है, ये हेजी है। वर्सेस इधर में देखिए कितना क्लियरली विजिबल है। इन द रियल एक्सरे देखो, यहाँ पे तुम्हें हार्ट का बॉर्डर नहीं दिख रहा है,
बट यहाँ पे तुम्हें हार्ट का बॉर्डर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, and there is haziness and opacity, ठीक है. Let us see if I am missing something or not. Middle lobe collapse, sometime associated with increased density, is very obvious. In other words, occasional horizontal fissure may be clearly depressed sometimes, and it is evident, ठीक है. And there is possibility of collapse is blurring the right border of the heart, which I have already said. So this is a case. सबसे पहले जब यहाँ पे राइट हार्ट का जो बॉर्डर है वो ऑब्सक्योर हो गया है, वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेफ्ट हार्ट की बॉर्डर मुझे क्लियरली दिख रही है, इसका मतलब देयर इज सम पैथोलॉजी विच इज टचिंग द सरफेस एंड ऑफ द सेम डेंसिटी, ठीक है. ओके, सो जब हम इसी पेशेंट को लैटरल व्यू घुमा के लैटरली देखें, जस्ट सी द डेंसिटी. सो दिस इज अ डेंस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट द कोलैप्स्ड मिडिल लोब लुक्स लाइक, ठीक है. मिडिल लोब कोलैप्स कर गया. ओके, सो राइट साइड की हो गई, वी डिड द मिडिल लोब, बचा अब एपाइकल. सबसे पहले राइट अपर लोब, नॉट द एपाइकल, द राइट अपर लोब. अब राइट अपर लोब अगर कोलैप्स करेगा, आई सेड यू फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो अगर राइट अपर लोब कोलैप्स करता है तो हमारा जो बाकी डायफ्राम है, बाकी लंग फील्ड है, ये हाइपर इन्फ्लेट करेगा, उस कोलैप्स वैक्यूम की जगह को लेने का ट्राई करेगा, बट ऑल टोटल वॉल्यूम तो लॉस होगी, तो देर इज अ वॉल्यूम लॉस, ठीक है, ये हम बोलेंगे. as well as there is hyperinflation of the residual part. Compare this darkness जो काला राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है वर्सेस द राइट साइड. दोनों में से राइट साइड जो होगा वो हाइपर इन्फ्लेटेड होगा, ज़्यादा एयर रहेगा, तो ये ज़्यादा ब्लैक दिखेगा. लेफ्ट साइड में कम, मतलब थोड़ा सा वाइटिश दिखेगा. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, यहाँ पे जो सिंस देर इज़ वॉल्यूम लॉस, दोनों रिब्स के बीच का स्पेस भी कम हो जाएगा. एज वेल एज यू कैन सी दैट हमारे यहाँ पे राइट साइड में एक हॉरिजेंटल फिशर है. These fissure, due to the expansion of the lower part of the lung, there is a deviation, there is a change of the position of the fissure, ठीक है. नाउ ये जो राइट अपर लोब होती है, राइट अपर लोब है, ये कोलैप्स करने का बहुत सारा कारण हो सकती है. दैट वाज द फर्स्ट इमेज विच आई वाज शोइंग, मैंने थोड़ा सा स्किप किया उस पार्ट को. इट कैन बी, यहाँ पे जो ब्रोंकस एयर सप्लाई कर रही थी, उस ब्रोंकस को ड्यू टू एनी मैलिग्नेंसी, देर इज ए लिम्फ नोड, वो लिम्फ नोड उस ब्रोंकस को पेटेंसी को बंद कर दिया. नाउ इट हैज कंप्रेस द ब्रोंकस. एज ए रिजल्ट द एयर इज नॉट गोइंग इन एंड दिस पार्ट हैज कोलैप्स्ड. तो यहाँ पे अगर मेरे पास लिम्फ नोड है तो ये क्या दिखेगा, वाइटिश दिखेगा. जस्ट सी ओवर हियर, ये मेरे को एक, देर इज ए लिम्फ नोड, ये मुझे वाइटिश दिखेगा, ठीक है. एज वेल एज दिस कर्व इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द, मेरा हॉरिजेंटल फिशर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है. दिस इज द रीजन दिस पार्ट लुक्स वाइट. और ये एक एस शेपेड बन रही है कर्व, या फिर इन्वर्टेड एस भी बोल सकते हो. दिस इज नोन एज गोल्डन एस साइन, ठीक है, गोल्डन एस साइन और द रिवर्स एस साइन ऑफ गोल्डन, ठीक है. आई होप इट इज, आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड एंड क्लियर दैट दिस इज हाउ इट लुक्स. जस्ट सी, यही चीज़ अपर लोअर कोलैप्स में कैसे दिखेगा. जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. दिस इज अ माइग्रेशन. दोनों साइड में कंपेयर कीजिएगा तो ये ज़्यादा डार्क है, ठीक है. दिस इज द कोलैप्स्ड अपर लोब. आई होप आई कुड मेक यू क्लियर. नाउ लेट अस कम टू अनदर पार्ट. लेट अस कम टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में दो ही लोब है, एक ही फिशर है, अपर लोब लोअर लोब डिवाइडेड बाय द ऑब्लिक फिशर. अगर अपर लोब कोलैप्स होगा तो सेम थिंग हैपेंस. कोलैप्स ऑफ द अपर लोब इज अ वेल लाइक ओपेसिटी. यहाँ पे देखो अपर लोब में यहाँ पे एक वेल लाइक ओपेसिटी आ रही है, ठीक है. एंड सिंस ये जो अपर लोब है ये ऐसे जाती है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का बॉर्डर मुझे दिखना चाहिए. इट विल गेट ऑब्सक्योर्ड. So that is what happens. Lower lobe, same concept, ठीक है. Okay, I've already spoken about the Sillaud sign in details. Okay, so now tell me, use this concept of Sillaud sign, ठीक है. आपको, I want you to interpret this part. See, हरदम ऐसा नहीं है कि कुछ भी वाइट दिखेगा तो दैट इज़ अ कोलैप्स. देयर कैन बी मेनी डिफरेंशियल. सबसे पहले तो इफ्यूशन हो सकता है, ठीक है. देयर कैन बी कोलैप्स, देयर कैन बी कंसोलिडेशन. नाउ एज ए गुड क्लिनिशियन, दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे. इफ्यूशन होगा, स्टैंडिंग एक्सरे में रहेगा, सीपी एंगल सबसे पहले ब्लंट होगा, मतलब सीपी एंगल में यहाँ पे पानी जम जाएगा तो ये वाइट हो जाएगा, बाकी जगह में एयर है तो ये ब्लैक दिखेगा. बट ऐसा तो नहीं है, आई कैन सी एयर, यहाँ पे मुझे एयर दिख रहा है, तो ये इफ्यूशन तो नहीं है सर. सेकेंड है, अगर कोलैप्स होता,
अगर कोलैप्स होता तो व्हाट आर द थिंग्स, कोलैप्स कभी भी इतना प्रीडोमिनेंट एरिया में होमोजेनसली नहीं होगा। सो ये कोलैप्स भी नहीं है। बचा क्या, अगर हमारा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, या कंसोलिडेशन हो सकती है बिल्कुल, और आई कैन ऑल्सो से दैट जस्ट सी देर इज एन एलिवेशन ऑफ द डोम ऑफ द डायफ्राम, मतलब द ये जो फिशर है, द फिशर गॉट एलिवेटेड, ठीक है। सो दीज टू मी लुक्स लाइक ए कंसोलिडेशन। एंड वेन एवर नाउ ये कंसोलिडेशन कौन सी लोब में है, इसके लिए हम सिल आउट साइन का यूज़ करेंगे। अगर मेरा यहाँ पे ये कंसोलिडेशन और वॉट एवर इट इज़ इन कंटिन्यूटी विद द मीडियास्टाइनम, ठीक है, हार्ट से कंटिन्यूटी में है, टचिंग द बॉर्डर ऑफ द हार्ट, दैट इज़ द मिडिल लोब। उसीलिए यहाँ पे सीधा हार्ट की मुझे मार्जिन डिस्टिंक्टली नहीं दिख रही है, वर्सेस यहाँ पे देखो कितना डिस्टिंक्टली मुझे मार्जिन दिख रहा है, बट यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू सी द मार्जिन डिस्टिंक्टली। इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन है मिडिल लोब में है। अगर लोअर लोब में होता तो क्या होता, लोअर लोब में होता तो मुझे ये वाला मार्जिन डिस्टिंक्टली दिखता, और बट लोअर लोब में डायफ्राम के कांटेक्ट में जो सरफेस रहता, लोअर लोब इज मोस्टली इन कांटेक्ट विद द डायफ्राम, तो डायफ्राम का जो मार्जिन है वो मुझे क्लियरली नहीं दिखता। दिस इज important and this is how you identify whether a consolidation is in middle lobe versus a lower lobe. I repeat again, अगर middle lobe में होगा तो ये जो बहुत important है, ये जो heart का margin देखो how beautifully distinct it is in this side and we are not able to see the heart margin this side. This signifies that it is in the middle lobe. Why not in the lower lobe? Lower lobe होता तो ये diaphragm को भी obscure करता, but see diaphragm में ये सिलाउटिंग नहीं हो रही है, so it's not in the lower lobe. कंफर्म करने के लिए हमने एक लैटरल एक्सरे लिया, लैटरल एक्सरे में हमें एक पैनकेक की तरह शेडो मिला, इट इज कंफर्म इट इज इन द मिडिल लोब। ओके, सो हियर इट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ पे मुझे एक ओपेसिटी मिला, बट आई कैन सी दैट द हार्ट की जो मार्जिन है इट लुक्स प्रिटी गुड, but can you see how the diaphragm looks? No, there's a silhouetting of the diaphragm. So if there is a silhouetting of the diaphragm, where in a background where the right heart margin is normal, the pathology lies in the lower lobe. See how beautiful it is, pathology is in the lower lobe. So आपने कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करना सीखा, एंड आपने कौन से लोब में कंसोलिडेशन है ये भी आप बता दोगे अब चेस्ट एक्सरे देख के। सो हमने चेस्ट में फ्लूइड है, हमने वो सीख लिया। चेस्ट में हमारे पास एयर है, दैट इज़ न्यूमोथोरैक्स, हमारे पास फ्लूइड और एयर है, दोनों है। हमारे पास कोई पैरेन्काइमल पैथोलॉजी लाइक कंसोलिडेशन है इन केस ऑफ न्यूमोनिया, कंसोलिडेशन कौन सा लोब में है वो हमने सीख लिया। हमने कैविटीज सीखा, हमने सीखा कि इट इज़ नॉट दैट जस्ट सारे opacities, millet like opacities are miliary tuberculosis, there can be other many varieties, ठीक है, जो वाइट डॉट्स दिखेगा। हमने सीखा कि अगर एक लोब कोलैप्स करता है लंग्स में तो हमें क्या क्या चेंजेस मिलता है, वहाँ के ब्लड सप्लाई कट आउट हो जाएगी, ठीक है, एंड देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हाइलम डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा लोब कोलैप्स कर रहा है। मिडिल लोब कोलैप्स करेगा तो हाइलम अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। फाइन, ओके, सो वी आर गुड टू गो। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक सीख लिया, एक तो हाइलम आपने नया सीखा, दूसरा आपने मीडियास्टाइनम सीखा। हमने पैरेन्काइमा ऑलरेडी बात कर लिया, सॉरी नॉट द ये, वी हैव लर्नड अबाउट द कार्डियक सिल आउट, सॉरी। नाउ कमिंग टू द मीडियास्टाइनम। सबसे पहले मीडियास्टाइनम हम क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। मीडियास्टाइनम हम इसीलिए यूज़ करते हैं, मतलब मीडियास्टाइनम में क्या देखना है। सबसे पहले ना आप मीडियास्टाइनम का साइज़ देखोगे। हमारे नॉर्मल कलोकियल टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि देखो हाउ टू मेजर द साइज ऑफ द हार्ट, कैसे आप कार्डियोमेगाली बताओगे। ये हमारा राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट, लेट मी यूज अ पेंसिल सो दैट पेन, ओके, सी ये दिस इज आवर राइट बॉर्डर, दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, अग्रीड, फाइन। what is how to calculate the size, कार्डियोथोरैसिक रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हार्ट कार्डियोमेगाली है बोलने के लिए। सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस, दिस सॉरी दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज अ स्पाइनस प्रोसेस। हम सबसे पहले इस स्पाइनस प्रोसेस से, सॉरी दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, या ये सारा स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। हम स्पाइनस प्रोसेस से एक लाइन खींचेंगे, बराबर राइट लेफ्ट साइड में मैक्सिमम जो डिस्टेंस है हम उसको लेंगे,
राइट साइड में मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन द सेम प्लेन में होना चाहिए, इस लाइन से कोई भी जगह से मैक्सिमम होगा। सो मेजर दिस इज ए, दिस इज बी, इस दोनों को ऐड करेंगे वर्सेस ये सेम लाइन से हम हमारे मैक्सिमम थोरैक्स के मैक्सिमम जो लंग्स के मैक्सिमम एरिया है उसको लेंगे। लेट अस सी, लेट अस कॉल इट सी एंड लेट अस कॉल इट डी। So we'll add A plus B is equal to whatever it is coming, C plus D whatever it is coming। ये जो हार्ट का साइज होगा ये 50% या उससे कम होना चाहिए। अगर हार्ट लंग फील्ड के 50% या उससे ज़्यादा ले रहा है, दिस मीन्स दैट देयर इज कार्डियोमेगाली, प्रोवाइडेड आपका एक्सरे एडिक्वेट है, दैट इज रोटेशन नहीं है। अगर रोटेशन होगा उस फिल्म में आप एक्सरे को कभी कार्डियोमेगाली कमेंट नहीं करोगे। सेकंड, अगर आपका फिल्म प्रॉपर इंस्पिरेशन, फुल इंस्पिरेशन में नहीं है तो आप कार्डियोमेगाली को कमेंट नहीं करोगे। थर्ड, अगर आपका व्यू पीए व्यू के जगह अगर आप एपी व्यू में लेते हो, बेड साइड में लेते हो, आईसीयू पेशेंट में, आप कार्डियोमेगाली कभी कमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये तो हमने देख लिया, पीडियाट्रिक्स में इक्वेशन ऐसा नहीं होती है। इन केस ऑफ ए पीडियाट्रिक्स, बच्चे के केस में द रेशियो गोज अप टू 65%। दिस मीन्स दैट हार्ट जो आपका है ये 65% ऑफ द लंग फील्ड को कवर कर सकती है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, एडल्ट में द रेशियो इज 50%, पीडियाट्रिक्स इट इज अप टू 65%। 65% से ज़्यादा अगर हार्ट कवर अप करती है देन वी कॉल इट कार्डियोमेगाली। ठीक है, okay, so coming to the cardiac contours, see, whenever we see mediastinum, जब भी हमें mediastinum दिखता है तो we must know that what are the structures that are seen, मतलब boundaries of the heart, heart के boundaries में क्या क्या है। See, I have an analogy diagram over here, if you can see, these are our superior vena cava, तो मुझे ये superior vena cava, I'll use a pencil over here, okay, this is the superior vena cava। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा की मार्जिन दिखेगा, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी मुझे दिखेगा, यहाँ पे मुझे एओर्टा दिखेगा। लेट अस ड्रॉ इट ओवर हियर। यहाँ पे मुझे पूरे रेंज में सुपीरियर वेना कावा दिखा, मुझे यहाँ पे एट्रियम दिखा, आई सॉ दिस इज द एट्रियम, यहाँ पे छोटा सा ना इन्फीरियर वेना कावा आती है, देन यहाँ पे मुझे एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल दिखा, राइट एट्रियम, देन मैं यहाँ पे आई सॉ दैट देर इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम की अपेंडेजेस है, यहाँ पे मेरा पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और यहाँ पे आर्च ऑफ द एओर्टा है, दिस इज द एओर्टो पल्मोनरी बे, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वन टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू से, अगर यहाँ पे मुझे एक बल्ज मिल रहा है, सो व्हाट डू यू से दैट यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हुआ है, वेरी सिंपल। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर ये राइट वेंट्रिकल का दिस कर्व इज लॉस्ट, अगर यहाँ पे मुझे स्ट्रेटनिंग मिल रहा है, ये सारा चीज़ स्ट्रेट हो रही है, दिस मीन्स देयर इज अ पैथोलॉजी। ठीक है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट लेटर। सो ये बेसिक नॉर्मल मार्किंग्स है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइड मिल रहा है ये स्ट्रक्चर, so this means there's a pathology and there's an increase in pressure in the superior vena cava, as simple as that। ठीक है, अगर राइट एट्रियम बड़ा हो गया तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा तो ये थोड़ा ज़्यादा कर्व मिलेगा, इसीलिए ये मार्किंग्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो वी हैव रेड अबाउट द कार्डियक साइजेस, वी हैव रेड अबाउट द कार्डियक कॉन्टूर्स, नाउ लेट अस रीड अबाउट दी, जब हम इसी मीडियास्टाइनम को अगर स्टडी करना रहता है तो बेस्ट वे टू स्टडी मीडियास्टाइनम इज इन द लैटरल व्यू। नाउ ITMIG जो ग्रुप है, इट हैज़ डिवाइडेड मीडियास्टाइनम इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। एक जो हमारा वेस हार्ट, दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट, दिस इज द मिडिल कंपार्टमेंट एंड दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियरली में क्या हुआ, वी कैन सी दैट देयर इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में anteriorly the vertical line drawn along the thoracic vertebra 1 centimeter behind their anterior margin, ये 1 सेंटीमीटर दिस इज एंटीरियर मार्जिन, इस एंटीरियर मार्जिन से 1 सेंटीमीटर पीछे से एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एंटीरियर बाउंड्री हुआ। नाउ बाकी पूरा
कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स, ये पूरा जॉइंट एकदम लास्ट तक पोस्टीरियर बाउंड्री हो गया. दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. व्हाट इज द मिडिल कंपार्टमेंट? मिडिल कंपार्टमेंट में वही होगा जो एंटीरियर कंपार्टमेंट का बैक होगा. दिस इज द पार्ट दैट इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेकिया एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ट. हार्ट की पोस्टीरियर मार्जिन और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेकिया. एंड सेम गोज द अदर वे राउंड. पोस्टीरियर मार्जिन इसका क्या होगा? पोस्टीरियर मार्जिन 1 सेंटीमीटर विद इन दी कॉस्टोवर्टिब्रल thoracic vertebra, anterior margin of this vertebra. ठीक है. और एंटीरियर बाउंड्री क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द manubrium sterni to the anterior aspect of the trachea and the posterior margin of the heart. इम्पॉर्टेंट इसीलिए होती है, हर लोकेशन में अलग अलग पैथोलॉजी आती है जिसकी इसकी इंपॉर्टेंस है. यू कैन सी ए ओपेसिटी इन दिस पार्ट. ठीक है, आपको एक ओपेसिटी दिख रही है, नॉट दिस साइड, मोर ऑफ लाइक दिस साइड. ठीक है. कैन यू टेल मी दैट ये जो वाइट डेंसिटी है, इसमें जो मास है, ये थोरैक्स के अंदर है ना, ये थोरैक्स के बाहर भी एक्सटेंड कर रहा है? सो यू गेट एन एक्सरे, आपके पास एक वाइट स्ट्रक्चर है, ये थोरैक्स के अंदर है ना थोरैक्स से बाहर है? कैन यू टेल मी whether it is lying in the neck as well as in the thorax, cervical region as well as in the thorax? Easy way to identify is, अगर उस मास की मार्जिन प्रॉपरली डिलीनिएट कर सकते हैं और ये जो मार्जिन है इट लुक्स कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज कर रहा है, वर्सेस आई विल शो यू अ मास ओवर हियर. देखो, कैन यू सी दैट द सेफेलिक बॉर्डर, दिस बॉर्डर ऑफ द मास, ये जो है इट इज़ एक्सटेंडिंग अपवर्ड. ठीक है. जस्ट दिस इज सेम पेशेंट, इसके गले तक एक्सटेंड कर गया. दिस इज मोर और लेस अ mass which is both into the cervix as well as into the thorax. ठीक है. Versus a mass which is whose upper border tends to converge within inside, then this mass is purely within the thorax. इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इसका जो अपर बॉर्डर है वो कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है. अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये थोरैक्स में भी है, और ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये विद इन द मीन्स थोरैक्स एज वेल एज सर्वाइकल रीजन में है, और ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये विद इन द थोरैक्सिक कैविटी है. दिस इज नोन एज सर्वाइकोथोरैसिक साइन. ठीक है. फर्स्ट साइन हमने मीडियास्टेनम के देखा. सेम इसी कंसेप्ट को आप यूज इट बिलो. दैट इज, अगर एक मास है, जस्ट सी, दिस इज द हार्ट. ठीक है. यहाँ पे और एक मुझे लाइन मिल रहा है, ये जो मास है ये मास मेरा डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्जिंग नहीं है, ये डाइवर्ज कर रहा है, एंड दिस कंटिन्यूज विद इन द एब्डोमेन. सो दिस मास इज नॉट प्योरली इंट्राथोरैसिक, दिस इज थोरैको एब्डोमिनल मास. आई होप आई कुड एक्सप्लेन. दिस इज सेम पेशेंट zoomed इन. ये देखो थोरैको एब्डोमिनल मास है. दिस इज सेम पेशेंट. ठीक है. एक दी थोरैको एब्डोमिनल साइन किस किस केस में दिखेगा? एन्यूरिज्म में दिखेगा, मैलिग्नेंसी में दिखेगा, एजाइगस कंटिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर वेना कावा. ठीक है. क्या बताते हैं? लेट मी जस्ट रीड आउट. अ शार्पली मार्जिनेटेड mediastinal mass seen through the diaphragm on either a chest or an abdominal film is must lie in the thorax. ठीक है. अगर कन्वर्ज हो रहा है लोअर एंड ऑफ द मार्जिन टुवर्ड्स द स्पाइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ प्रोबेबली इंटायरली इंट्राथोरैसिक. अगर वो कन्वर्ज कर रही है थोरैक्स के अंदर ही टुवर्ड्स द स्पाइन, दिस मीन्स ये थोरैक्स के अंदर है. अगर कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज कर रही है तो इट इज़ एब्डोमिनल thorax as well as in abdomen. This is known as thoraco-abdominal sign. तो अगर आपको एक्सरे में एक वाइट लीशन मास दिखेगा मेनली इन मैलिग्नेंसी, अगर वो ऊपर की तरफ भी जाके डाइवर्ज कर रही है, इट लुक्स एज इफ इट इज इन द बोथ द कंपार्टमेंट. सेम गोज विद द वन बिलो thoraco-abdominal. What is hilum overlay sign? ठीक है. ओके, सी, इट इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है. सॉरी, फेल्सन, बेंजामिन फेल्सन. इसमें क्या रहता है कि जस्ट लुक एट द शेप ऑफ द हाइलम. ठीक है. इफ द हाइलर वेसल्स आर शार्पली डेलिनिएटेड, अगर आप हाइलर वेसल्स को ठीक से देख पाओगे, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द ओवरलाइंग मास इज एंटीरियर और पोस्टीरियर. If the mass is inseparable from the pulmonary artery, structures are adjacent to each other. Just use the same concept of cardiac sellout. ठीक है. अगर आप दोनों को डिफरेंशिएट, मतलब अगर आप हाइलम को, वी हैव ए हाइलम एंड वेट, वी हैव हाइलम एंड मास, दोनों को अगर आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, द मास इज आइदर एंटीरियरली, उससे डिस्टेंस दूर में है, या फिर पीछे में है, नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अगर सेम इंटेंसिटी का स्ट्रक्चर अगर हाइलम के साथ सटा हुआ रहेगा तो उसकी जो आप मार्जिन है हाइलम की और मास की सेपरेटली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट हाइलम ओवरले साइन स्टेट्स। आई वांट यू टू टेल मी, जस्ट सी, यहाँ पे आप हाइलम को अच्छी तरह से देख सकते हो। आई विल शो यू, दिस इज द हाइलम, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे मास का भी बॉर्डर दिख रहा है, हाइलम भी बॉर्डर दिख रहा है। कैन यू सी दिस हाइलर बॉर्डर? दिस इज समथिंग अ केस ऑफ जहाँ पे इधर इट इज एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हाइलम ओवरले साइन इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज द सेम पेशेंट, इफ यू कैन सी, यहाँ पे इट इज नॉट इन कनेक्शन, यहाँ पे नहीं है मास, मास इज एंटीरियरली, ठीक है। दिस इज द सेम पेशेंट एंटीरियरली, उसीलिए हमें हाइलम यहाँ पे दिख रहा है। I hope I could make it clear. This is what hilum overlay sign is. Okay, so next sign is hilum convergence sign. So basically हमारे हाइलम में एक मास है, ठीक है, मतलब डेंस ओपेसिटी है। कैन यू टेल मी वेदर इट इज़ ये पल्मोनरी आर्टरी के लिए ओपेसिटी है, ना कि ये मास के लिए कोई हाइलर मास है? हाउ टू टेल? इट गोज लाइक दिस, अगर पल्मोनरी आर्टरी मास के तरफ कन्वर्ज कर रही है, मास के तरफ अगर कन्वर्ज कर रही है, इट इज़ ड्यू टू, दिस मीन्स दिस शैडोज जो इंक्रीज, जो हमें अपेरेंटली लग रहा है मास है, दैट इज़ नॉट ए मास, दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी। वर्सेस अगर जो थिक वाइट ओपेसिटी है और अगर एक ब्रांचिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी है और वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द मास, it approaches towards the heart, then these opacity is due to the mass। आपकी जो हाइलम की ओपेसिटी है वो मास के लिए है। सो दैट इज़ व्हाट हाइलम कन्वर्जेंस साइन मीन्स। इससे हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प होगी कि वेदर the pulmonary this opacity is due to pulmonary artery का hypertension के लिए हो रहा है, या फिर widening of the pulmonary artery with मतलब adequate or high amount of blood in it, or it is due to the mass। There's a hilum convergence sign। Now comes deep sulcus sign। Can you see that these sulcus, this part is so deep, this right dome of the diaphragm is so deep, it is generally seen in a supine patient in a case of pneumothorax, ठीक है। Supine patient pneumothorax, we see deep sulcus sign, pneumothorax, air in the lung, ठीक है। कुछ lobes को मतलब some part of the lobe got collapsed and as a result the diaphragm is high up, ठीक है। Okay, what is Palla sign? Palla sign refers to an enlarged right descending pulmonary artery जो एक sausage type का shape हो गया। Just see this part, ये white thickened pulmonary artery हो गया। This means this is a patient of pulmonary artery hypertension। This is what Palla sign is। Fleshner sign क्या होती है? Indicates dilatation of the proximal pulmonary artery, particularly the main pulmonary artery। ये जो proximal part है ये dilate कर गया and there is peripheral pruning, ठीक है। This is known as Fleshner's sign, ठीक है। Okay, now this is the last part, ठीक है, and we are about to conclude the chest x-rays। Before ending I would like to say that there कुछ x-rays में ना कुछ और एक्स्ट्रा लाइंस भी हमें दिखती है। these lines are very important, ठीक है। I'll show you, जहाँ पे I'll show you, let me just directly dive into it, ठीक है। Can you see this? I want you to see this। This is the CT, सीटी स्कैन की इमेज है। इस सीटी स्कैन की इमेज में दिस इज द राइट, दिस इज द सॉरी दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग, फाइन। द लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग जहाँ पे मीट होती है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है। दिस इज व्हाट नो इज नोन एज एंटीरियर जंक्शन लाइन। अपर राइट upper right to lower left over the upper third of the sternum। This is basically where the anterior junction line stays। This is a red one, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल सकता है एक्सरे में। दिस इज़ वॉट इट इज़, इट्स ऑलरेडी मार्क्ड, आई एम सॉरी, बट यहाँ पे मुझे अगर कुछ लाइन मिल रहा है तो इट इज़ द एंटीरियर जंक्शन लाइन। कैसे बन रही है? आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। देर इज़ वन मोर लाइन, ये पीछे की तरफ जो लाइन होगी, कैन यू सी दिस? अगर हम नीचे आएंगे तो दिस इज़ अ पोस्टीरियर जंक्शन लाइन, ये भी ऐसे करके बनती है। दिस, कैन यू सी दिस लाइन? आई ड्रॉ वंस एंड देन आई लीव इट। दिस इज़ द पोस्टीरियर जंक्शन लाइन, ठीक है।
बिट टफ टू आइडेंटिफाई बट कर सकते हो आप. दिस अ ब्लू इज द पोस्टीरियर जंक्शन लाइन. ठीक है. सो वी हैव सीन टू लाइन्स. ये लाइन मिलेगा तो ये नॉर्मल है. ठीक है. डू नॉट गेट मतलब कन्फ्यूज्ड. Okay, so after that, trachea. We have the trachea and we have the trachea has air in it and the cartilaginous ring. Then we have the lung fields. ठीक है. ट्रेकिया और लंग्स के बीच में, लंग्स में हवा रहता है, द कार्टिलेज लुक्स वाइट. सो दीज मेक्स अ पैराट्रैकियल लाइन. ठीक है. थोड़ा सा इसके बीच में एक तो टिश्यू की डेंसिटी गैप रहती है, देयर इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. टिश्यू की गैप रहती है. सो दीज आर दी पैराट्रैकियल लाइन्स. अगर यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन होगा या फिर दी पैराट्रैकियल लाइन गेट्स वाइडेंड, this is known as increased paratracheal stripe, and this means that this is a pathology. I'll show you just now. This is of what I was talking about. This is a right side paratracheal line. लंग के टिश्यू के बीच में right side paratracheal line. See, this is it. ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन है. This part. I hope you can see. यहाँ पे एक तो लाइन है. I'll use the highlighter also and show you. This is the right paratracheal line. ठीक है. ये वाइडन भी हो सकती है. अगर वाइड होगा तो यहाँ पे कुछ वाइटिश कलर का ज़्यादा थिक दिखेगा. दिस एंड ऑलवेज थिंक दैट देयर इज़ अ पैथोलॉजी. ये सीटी स्कैन में ये ट्रेकिया और लंग फील्ड के बीच में पैराट्रैकियल लाइन लंबा करके दिखेगा हमें. दिस इज द राइट, दिस साइड इज द लेफ्ट. कैन यू सी द लेफ्ट पैराट्रैकियल लाइन? दिस इज द लेफ्ट पैराट्रैकियल लाइन. ठीक है. वाइडनिंग ऑफ पैराट्रैकियल लाइन और पैराट्रैकियल स्ट्राइब इज पैथोलॉजिकल. ठीक है. Okay. Then we see that aortopulmonary stripe. The same concept, aorta, arch of the aorta और pulmonary artery, उसके बीच में एक लाइन रहता है. This is the aortopulmonary stripe. I'll show you. This is what I was talking about, aortopulmonary stripe. यहाँ पे अगर इस ये लाइन अगर enlarge हो जाती है, this means, या फिर concave convex हो जाती है, this means there is a pathology. This is what I was talking about. After this we have the one of the important lines. लास्ट और 2 लाइन्स बची है. ठीक है. स्पाइन. अगर स्पाइन के पैरेलल में कोई लाइन रहेगा तो विल कॉल इट पैरास्पाइनल लाइन. नाउ टेल मी, अगर यहाँ पे पस जम जाती है इन केस ऑफ कोल्ड एब्सेस, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे कर्व बन जाएगी. तो राइट पैरास्पाइनल लाइन gets obliterated and there is a curve. Can you see there's a curve in this line? This is pathological. तो इसीलिए ये सब लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए. अगर यहाँ पे कर्व्स मिलती है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ पैथोलॉजी. ऑलवेज लुक इनटू दिस लाइंस. बहुत रेयरली लोग इतने डिटेल्स में बात करते हैं एक्सरेज की. ठीक है. सो ऑलवेज लुक अबाउट दिस लाइंस. इन अ पेशेंट ऑफ टीबी यू विल हैव दिस. अगर बोन टीबी होती है और वर्टिब्रा में होती है तो ऑलवेज चेक दी राइट पैरास्पाइनल लाइन. ठीक है. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट पैरास्पाइनल लाइन. ठीक है. Same goes with the left paraspinal line. I will not discuss about this anymore. Okay. The last line, that is azygoesophageal line. ठीक है. Or the azygoesophageal recess. Can you see this line? This is most commonly seen. ठीक है. अगर ये लाइन भी अपने एरिया से डेविएट कर जाता है, this means there is some underlying pathology. ठीक है. In the hilum. This is very important. 60 to 65% of the cases you will see this line, and so do not get confused. ये बीच में एक तो white line देख के do not think that it is a line of the esophagus. Now इसी में हम लोग थोड़ा let us try to delineate. ठीक है. ये हमारा हो गया arch of the aorta. This is the descending thoracic aorta. This is the azygoesophageal line. This is the right paraspinal line. अगर हम ऊपर से ट्रेस करते हैं, दिस इज द लेफ्ट पैरास्पाइनल लाइन. दिस इज द लेफ्ट पैरास्पाइनल लाइन. दिस इज द डिसेंड लाइन फॉर द डिसेंडिंग thoracic aorta. दिस इज द cardiac sellout. ठीक है. This is the left paraspinal line. This is the zygoesophageal fissure or the line, and this is the border of the right cardiac sellout containing the right atrium. This is the vessels of the descending pulmonary artery. This is the aorta. This is the trachea, and this is the paratracheal stribe. ठीक है. ये 2 to 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा कभी भी यहाँ पे वाइट स्ट्रक्चर्स नहीं, मतलब थिकनिंग नहीं होना चाहिए. अगर है देयर इज अ पैथोलॉजी इन इट 100%.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये नोट करिए. ओके, सो मीडियास्टेनम इज कंप्लीट. साइंस ऑफ द मीडियास्टेनम इज कंप्लीट. कैसे आप एक हाइलर मास, ओपेसिटी, शैडो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे आप एक थोरैसिक पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे, थोरैसिक मास को, whether that is cervicothoracic or thoracoabdominal. I've already spoken about all this. Last part, you can see, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है. आई वॉन्ट यू टू फोकस ओवर हियर. ये एक वाइट मास दिख रहा है. कैन यू टेल मी वेदर इट originates from the surface of the chest wall, that is pleura, या फिर it is in the parenchyma. जस्ट इसकी एंगल को देखो. दिस एंगल इज acute एंगल. आई वॉन्ट यू टू सी दिस. ये जो मास दिख रहा है, इसकी एंगल क्या है? इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है. अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, द लीजन इज इन दी प्लूरल कैविटी, मतलब तुम्हारा प्लूरल सरफेस में. वर्सेस if this angle between subtended between this mass as well as the chest cavity is less than 90, that is an acute angle. This is intraparenchymal. just see, ये parenchyma के अंदर है और इसका एंगल acute एंगल बन रही है. ठीक है. So this is how we delineate that whether the mass is a pleural mass or it is intraparenchymal mass. दिस इज द एंगल आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है. अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये प्लूरल मास है. द मास इज इन द प्लूरा. ठीक है. और इट कैन बी अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ऑल्सो, इंसिस्टेड फ्लूइड लाइक पस भी है. तो कुछ भी होगा, इट इज़ प्लूरल पैथोलॉजी, इट इज़ नॉट पैरेनकाइमल पैथोलॉजी. दिस इज वॉट पर से आई वॉन्ट टू से. Thank you, and this was bit exhaustive, but I tried to cover almost everything, and I've always spoken out conceptually कि ऐसा क्यों मिलेगा, what are the reasons. If you like this video, please do give a thumbs up and please do comment like what are the other things I can add and what more can I improve. And if you like this way of teaching, please let me know. Thank you and have a good day. Bye.